हाँ जी, चैप्टर नंबर 10th। चैप्टर नाम की डिस्काउंट। सो डिस्काउंट चैप्टर विचों पेपर 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, 2013 ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, 14 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, 15 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ 6 ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਸੋਲਡ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫਰਿੰਗ ਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫ 5%। ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ 5%। ਕਿੰਨਾ? 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 23.5। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨਾ? 23.5 ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਇਫ ਨੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਸ ਆਫਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੀਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਮੀਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਉਹ ਕਰ ਲਓ 100। ਸੋ 100 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 23.5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 23.5 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 23.100 ਇੰਟੂ 100। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 100 ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, 23.5 ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 23.5 ਹੈ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 100 ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 123.5। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰ ਤੇ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ? 5%। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ x। ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5%। ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 5% ਆਫ x ਮੀਨਸ 5/100 ਇੰਟੂ x। ਠੀਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਸੋ x ਮਾਈਨਸ 5x/100। ਸੋ 95/100 ਇੰਟੂ x। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 123.5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 95/100 ਇੰਟੂ x। ਸੋ ਇਹਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1235.25। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਹੈਗਾ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 130। ਸੋ x ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 130 ਹੈ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 123.5। ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 130। ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5%। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 130, ਫਿਰ ਉਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਗਨੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ठीक है, ये इट में जिन्ना मार्केट प्राइस है उन्ना की है सैलिंग प्राइस है। तो सैलिंग प्राइस कितना है 130 है। सो कॉस्ट प्राइस कितना है
100। तो प्रॉफिट कितना हो गया 30। सो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। सो कट ऑफ हो गई, आंसर है 30%। सो 30% ऑप्शन नंबर थर्ड अपना की आंसर। नंबर 2 देखो कि कोई दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देने ते भी 20% की है प्रॉफिट लै लेंदा है। सो जेकर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 450 है। सो ਉਹਦਾ जो सैलिंग प्राइस की लिखा होना चाहिए, सैलिंग प्राइस की लिखा होना चाहिए। सो लिखा वर्ड होने करके ਆਪਾਂ की है मार्केट प्राइस फाइंड करांगे, क्योंकि किसी आर्टिकल के उपर वो सैलिंग प्राइस लिखा होना वो की ਹੁੰਦਾ मार्केट प्राइस ਹੁੰਦਾ। ठीक है, किसी भी आर्टिकल के उपर जेकर ਉਹਦਾ सैलिंग प्राइस जो प्रिंट ਹੁੰਦਾ ना वो की है मार्केट प्राइस ਹੁੰਦਾ है। सो इट मीन ਆਪਾਂ मार्केट प्राइस फाइंड करना है। ओके, सो फस्ट ਆਪਾਂ देखो कि ਇਹਦਾ मार्केट प्राइस ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ एक्स। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10% है। सो डिस्काउंट कितना होगा 10/100 इंटू एक्स। तो आई 1/10 इंटू एक्स। सो हम आप डिस्काउंट के मार्केट प्राइस की हेल्प नाल सैलिंग प्राइस फाइंड करांगे। सो सैलिंग प्राइस की होगा मार्केट प्राइस विचों डिस्काउंट करांगे माइनस, तो 9x/10 आ जाएगा। ओके ठीक है। सो उस तो बाद देखो, सो अपना कॉस्ट प्राइस कितना है 450 है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20% है। सो सैलिंग प्राइस कितना आएगा, फस्ट आप प्रॉफिट करें फाइंड 450 इंटू 20/100, सो 90 आ जाएगा। सो प्रॉफिट सैलिंग प्राइस अपना की प्रॉफिट ਨੂੰ कॉस्ट प्राइस ਵਿੱਚ करो ऐड 540। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस है, ये भी सैलिंग प्राइस है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ इक्वल रखेंगे। सो 9x/10 इज इक्वल टू 540, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x इज इक्वल टू 540 100 आएगा 5400 आएगा। सो 9 के नीचे 600। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ चुकी है। सो एक्स आप की लेट किया मार्केट प्राइस किया। सो एक्स की वैल्यू कितनी 600। सो उन्हें अपन पूछा भी वेच मुल जो सैलिंग प्राइस कितना प्रिंट होएगा। ठीक है, जो प्रिंट चीज होगी अपनी मार्केट प्राइस दी है। सो इट मीन अपना आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। सम नंबर 3 देखो जो कि पेपर में आया सी कि रोहित मार्केट गुड्स 20% अबव CP। कि रोहित है किसी भी गुड्स मतलब किसी भी चीज़ का जो वो मार्केट प्राइस है कॉस्ट प्राइस नालों 20% की ज़्यादा है प्रिंट करता। ठीक है, ओके, कि मीन किसी भी गुड्स का रोहित वो कॉस्ट प्राइस नालों मार्केट प्राइस की 20% ज़्यादा है। ओके, कॉस्ट प्राइस नालों मार्केट प्राइस। सो ही दैन मेड सम डिस्काउंट ऑन द इट, कि मीन वो कुछ वो कुछ डिस्काउंट देंदा है, तो डिस्काउंट देने बाद उन्होंने प्रॉफिट होंगे 8%। सो आप डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना डिस्काउंट वो दे रहा है। सो लैट करेंगे आप कॉस्ट प्राइस 100। सो उन्हें फिर मार्केट प्राइस की 20% ज़्यादा है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20%, 100 प्लस 20/100 इंटू 100। सो 120 हो जाएगा मार्केट प्राइस। ओके, सो CP अपन गिवन है, मार्केट प्राइस अपन गिवन है, मुझे आप फाइंड कर चुके हैं। सो एंड अपन गिवन है प्रॉफिट 8%। ठीक है, सो ना इन तीनों की हेल्प नाल एक फॉर्मूला सी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू CP। ठीक है, सो हम मार्केट प्राइस कितना है 120। सो 100 प्लस प्रॉफिट 108 आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज CP अपना 100। ओके, सो 120 को इधर मूव करेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट को इस तरफ। तो देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 108 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। सो 0 कैंसिल हो जाएगी, सो दोनों। सो 90 अपना आंसर आएगा। सो इट मीन्स 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 90। सो डी को इधर मूव करेंगे 90 को इधर। सो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज। सो डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू कितनी 10 आ गई। ओके, इट मीन डिस्काउंट परसेंटेज ना 10 है। सो इट मीन ऑप्शन नंबर 4 अपना की है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, सम नंबर 4 देखो
A shopkeeper sell a watch at a discount of 7%. If he give a discount of 11%, his profit reduced by 60 rupees. Then the market price of watch. So meaning देखो कि कोई शॉपकीपर है वो कि किसी वॉच ਨੂੰ सेल करता है, पहला सेल करता डिस्काउंट दिंदा 7%, ठीक है। से वाच के उपर डिस्काउंट कितना 7%, बट जेकर वो डिस्काउंट ਵਧਾ के 11% ही कर दे उससे वाच के उपर, फिर वो प्रॉफिट की रिड्यूस हो जाता है कितना 60 रुपीज़। इट मीन देखो इन्होंने दोनों के जो डिस्काउंट के डिफरेंस कितना होगा 60 रुपीज़, ठीक है ना। इन्होंने दोनों के जो पहला डिस्काउंट किया 7%, फिर डिस्काउंट किया 11%। सो जो 11% डिस्काउंट किया उदों वो प्रॉफिट की 60 रुपीज़ घट जाता है। सो आप मार्केट प्राइस फाइंड करना है। तो देखो तो डिस्काउंट हमेशा आप गल की कि मार्केट प्राइस ना रिलेट करता है। सो लेट करेंगे आप मार्केट प्राइस एक्स, डिस्काउंट परसेंट ही कितना पहला 7% ही, सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 7x/100। सो उस तो बाद देखो फिर उन्हें डिस्काउंट किया है 11%, इट मीन डिस्काउंट कितना होगा 11x/100। सो ये दो डिस्काउंट है, जो ये दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है 60 है, ठीक है। जो आ डिस्काउंट कर देना उन्होंने घाटा पैंदा 60 पैंदा प्रॉफिट में, ठीक है, इस डिस्काउंट के। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्होंने दोनों डिस्काउंट का आप सबट्रैक्शन करांगे, तो इस सबट्रैक्शन आप 60 के इक्वल रखांगे। तो देखो 4x/100 इज इक्वल टू 60, इन्हें इधर मूव करांगे 4x इज इक्वल टू 60 इंटू 100/4। सो ये 15 आएगा, x इज इक्वल टू 15,000। सो x आप लेट की मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस आप फाइंड करना है, ओके 1500 आएगा, सॉरी, ठीक है 1500। सो इट 1500 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, सम नंबर 5 देखो जो पेपर 2015 में आया ये ट्रेड्समैन सैल इज गुड्स एट 10% डिस्काउंट। कोई सेल्समैन है वो आपदी चीज़ों 10% डिस्काउंट के उपर बेचता है। इफ ही गेन 12.5% ऑन इट गुड्स, मतलब जेकर उन्हें प्रॉफिट होंदा है, जेकर उन्हें प्रॉफिट होंदा है सो उन्होंने प्रॉफिट होंदा 12.5। सो विच कॉस्ट ऑन हिम 1200 रुपीज़, मीन जेकर वह कॉस्ट प्राइस कितना हो 1200 हो तो आप मार्केट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो अपन डिस्काउंट गिवन है 10%, प्रॉफिट गिवन है 12.5 एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है 1200। सो मार्केट प्राइस का फार्मूला कि देखो पहला भी किया मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इनटू CP, ओके। सो देखो मार्केट प्राइस आप फाइंड करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सो प्रॉफिट कितना 12.5, तो इनू करेंगे 100 विच प्लस ये हो जाएगा 112.5, 100 माइनस डिस्काउंट, सो 100 विचों 10 करेंगे माइनस, सो ये आ जाएगा 90 आ जाएगा एंड कॉस्ट प्राइस अपना कितना 1200, ठीक। सो देखो हम ये वाला डेसिमल भी रिमूव करांगे तो नीचे हो जाएगा 900 इंटू 1200, तो 2 0 कैंसल, ये दोनों 3 टेबल ये दोनों टेबल 3 कैंसिल हो गए। सो ये दोनों की 3 टेबल पर कैंसिल करेंगे, 3 बजे 3, सो ये 375 आ जाएगा। सो 375 की मल्टीप्लाई 4 ना करेंगे अपना आंसर आएगा 1500। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1500। सो ऑप्शन नंबर 4 की इसका आंसर है। सम नंबर 6 देखो जो पेपर 2016 में आया था कि ए सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वलेंट टू सक्सैसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 25%, 20% एंड 10%। सो देखो अपन सक्सैसिव डिस्काउंट की होना 10, ठीक है, ये वाले जो परसेंटेज है। सो आप सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है, ओके। जो फॉर्मूले की थी उन्होंने फॉर्मूले आप किया कि जो आपको सक्सैसिव डिस्काउंट गिवन होना सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना हो वो 3 स्टैप ने। फस्ट आप MP हमेशा 100 लैट करा, ओके। फिर आप SP फाइंड करा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 इंटू, सो हरेक डिस्काउंट 100 विचों माइनस करा तो डिवाइड करेंगे 100 नाल,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਐਮਪੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਪੀ ਦਾ, ਐਸਪੀ ਮੈਟਸ ਐਮਪੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਐਮਪੀ 100, ਓਕੇ। ਸੋ D1 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25% ਹੈ, D2 20% ਐਂਡ D3 ਕਿੰਨਾ 10%। ਸੋ SP ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ। ਸੋ SP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਮਾਈਨਸ 25 ਬਾਈ 100 into 100 minus 20 into 100 minus 10 by 100 into MP। so MP ना 100, ठीक। सो सॉल्व करते हैं 75 by 100 into 80 by 100 90 by 100 into 100। सो ये दोनों कैंसिल, सो इधर ए 0, ओके। बच्चे मतलब 78 by 100 into 8 into 9, ओके। ਹੁਣ 8 ਤੇ 100 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਸਲ। 4 2 ਜਾਂ 8 ਐਂਡ 4 25 ਜਾਂ 100। ਸੋ 25 ਤੇ 75 ਕੈਂਸਲ 1 3, ਓਕੇ। 3 into 2 6, 6 into 9 54। ਸੋ SP ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 754 ਹੈ। ਸੋ MP ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 100। ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ MP ਮਾਈਨਸ SP ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 ਮਾਈਨਸ 54 ਆ ਜਾਏਗਾ 46 ਆ ਜਾਏਗਾ डिस्काउंट। सो बट आप डिस्काउंट परसेंटेज करना फाइंड। सो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। सो 46 बाय 100 इंटू 100, सो 46% अपना की डिस्काउंट हो जाएगा। सो इट मीन ऑप्शन इन्ना चो अपनी थर्ड की आंसर है। सो इस अपना डिस्काउंट चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर है जो पेपर में है वो की है कंप्लीट है।